ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਈਐਨਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ, ਤੇ ਕੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 0172667471 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਦੇਖੋ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਗਸ ਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 66744701। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ 0172 66744701। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੱਕ ਬਹਿਣਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਲਰ ਜੁੜਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਚਾਅ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵੀ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ
ਕੁਝ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ जी। डॉक्टर नरेश मेरी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੇ तक? आ रही है जी आपकी आवाज। जी सर। सर स्वागत है आपका। मैं शुरुआत कर लेता हूं। हमारे पास कुछ दर्शकों की कॉल्स आई और उनके सवाल हैं। एक तो ब्लैक फंगस को लेकर ही हम आज बात कर रहे हैं। ब्लैक फंगस जिनको डायबिटीज है, जो शुगर के मरीज हैं, उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी होंगी? और दूसरा सवाल यह था कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो क्या ब्लैक फंगस उनके लिए भी घातक हो सकता है? उनको भी कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे? मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा आपका कि जो डायबिटीज जिन लोगों को है और जिन लोगों ने स्टेरॉइड लिए हैं, जिन लोगों का कोविड, हमें बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिन लोगों का ऑलरेडी कोविड से इलाज हो चुका है, कोविड से वो रिकवर हो गए हैं और उसके बाद फिर उनको ये म्यूकरमाइकोसिस होके आ रहे हैं हमारे पास जी। तो उन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी है कि उनका जो शुगर कंट्रोल है बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का जो शुगर यदि कंट्रोल में नहीं रहा तो म्यूकरमाइकोसिस के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जी। कोविड होने के अप्रोक्सीमेटली हम अभी देख रहे हैं लास्ट 15 दिनों में कि अराउंड 15 से 20 दिन के बाद ये लोग को सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। और जो सिम्टम है वो है नाक में डिस्चार्ज वगैरह होता है, नाक में वहां पर सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके बाद जो फेस है उसमें एक सूजन आ जाती है, कई बार दर्द होती है और यदि बाई चांस यदि इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ गया हो तो आंख में जाने का खतरा रहता है जी। जहां तक वैक्सीन का सवाल है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वैक्सीन के बाद कि होने का खतरा है या नहीं है वही आप पूछना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन जैसे ये है कि वैक्सीन डेफिनेटली हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन वो तभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी जब हमारी इम्यूनिटी ठीक होगी। जिन पेशेंट्स में यदि उन्होंने उनका ब्लड शुगर कमजोर है या ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो इन दैट सिचुएशन फिर वो वैक्सीन का भी जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है हो सकता है वो कामयाब ना हो जी। सर हमारे साथ दर्शक कुछ और भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उस बीच एक सवाल यह भी है कि क्या कोरोना पेशेंट्स जो रिकवर कर चुके हैं उनको ज्यादा खतरा, ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब ये कोरोना के मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं जी, तो इलाज के रूप में इन लोगों को स्टेरॉइड दिया जाता है जी। बाकी सारी दवाइयों के साथ स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड के कारण होता यह है कि जिन लोगों को यदि बाई चांस उनको डायबिटीज है और
स्टेरॉइड एज ए ट्रीटमेंट उनको दिया गया, तो उनका जो स्टेरॉइड का जो इफेक्ट है वो शुगर का कंट्रोल नहीं रहता जी। तो एक वो रीजन है कि इन लोगों को एक तो डायबिटीज थे, ऐसे ही वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी कमजोर है जी। उसके बाद इनको स्टेरॉइड मिला। स्टेरॉइड मिलने के बाद फिर इन लोगों को ये इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है जी जी। एक है जो अप्रैल के महीने में हुआ ये कि अस्पताल में बेड्स की थोड़ी कमी आ गई, लोगों ने घर में ही इलाज करना शुरू कर दिया, अपने डॉक्टर दोस्तों से या दूसरे सलाह से इलाज करना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने जो स्टेरॉइड अपने आप ले लिया विदाउट मेडिकल इसके प्रिस्क्रिप्शन के, अपने आप ही उन्होंने स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया है। वो प्रोबेबली एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि स्टेरॉइड के कारण जो लोग डायबिटीज नहीं थे, जो लोग बॉर्डर लाइन थे, वो भी डायबिटिक हो गए, जिसके कारण प्रोबेबली उनकी इम्यूनिटी कम हो गई और ये वाली इन्फेक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा दिख रही है। जी सर, ये आप स्टेरॉइड्स का जिक्र कर रहे हैं, एक आम शख्स को कैसे पता लगेगा कि ये स्टेरॉइड है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स बात करते होंगे जिन्होंने घर पे इलाज किया, तो वो कुछ लिख के दे देते होंगे, कोई कहे कि आप ये वाली चीजें ले लीजिए, तो आम लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये स्टेरॉइड्स हैं? देखिए, कॉमनली जो कोविड वाले मरीजों को जो स्टेरॉइड दी जाती है वो डेक्सामेथासोन है, और वो उसका डोज 6 मिलीग्राम से शुरू किया जाता है। यूजुअली 6 मिलीग्राम, ज्यादा इन्फेक्शन हो जाने से 12 मिलीग्राम दी जाती है जी। ओरल स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो दवाई के माने ओरल टैबलेट्स के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं हो रहा। जो वाइसोलोन या प्रेडनिसोलोन होता है ज्यादा यूज हो रहा है, वो जो डेक्सामेथासोन है, और उसका इफेक्ट क्योंकि इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा तीव्र गति से होता है। शुगर के मामले में जहां तक सवाल है, शुगर की लेवल बहुत जल्दी बढ़ा देता है जी। ठीक है सर, इस बीच हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे। सदन गुरविंदर पाल सिंह जी जुड़ रहे हैं लुधियाना तो, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? शुक्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, मैं 54 मेरी एज है जी। जी। मैं कोरोना पॉजिटिव सी 20 दिन पहले जी। ਹੁਣ मैं आइसोलेट रहा 20 दिन जी। जी। मैं ठीक हाँ, मेरा बीपी भी ठीक रहता जी, ना मैंने शुगर की प्रॉब्लम है, तो मैंने इस चीज तो बचने के लिए किस चीज का ध्यान रखना चाहिए जी? ठीक है, शुक्रिया सर, ਤੁਹਾਡਾ बहुत अहम सवाल है। बहुत सारे पेशेंट्स इस समय जो कोरोना तो रिकवर हुए होंगे। डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप तक आवाज पहुंची होगी, सवाल उनका पहुंचा होगा। नहीं, मुझे सवाल नहीं। चलिए मैं बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि मेरे को पहले कोरोना हुआ था और लगभग 20 दिन हो चुके हैं, मैं रिकवर कर चुका हूं उससे, और वो डायबिटिक नहीं है और ब्लड प्रेशर की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका बीपी बिल्कुल ठीक है, तो वो ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें? देखिए, ऐसा है कि मोस्ट लाइकली अपना इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि एक बार जो अर्लीस है उनका ख्याल रखना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो जो अर्ली सिम्टम्स है कि यदि आपका सब कुछ ठीक है, नाक से सांस बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई नेजल डिस्चार्ज नहीं है, कोई सूजन नहीं है, आंखों से ठीक दिख रहा है, कोई हेडेक वगैरह नहीं है, तो ये सब चीजें हैं विच विल मेक यू श्योर कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन द मीन टाइम ऑब्वियसली जिन लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है उनको ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो हम अभी लास्ट 15-20 दिन से देख रहे हैं, इनफैक्ट 100% ऑफ द पेशेंट्स आर डायबिटिक, उन लोगों को डायबिटीज है। तो मतलब ये है कि जो डायबिटिक्स हैं उनको ज्यादा ध्यान रखना होगा, इनफैक्ट ज्यादा क्या उनको ही खास ध्यान रखना है ब्लैक फंगस के लिए। ठीक है सर, कुछ और सवाल भी है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक कॉलर भी हमारे साथ है पानीपत से, प्रभजोत कौर साडे नाल जुड़ रहे हैं पानीपत तो। प्रभजोत, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी सर, मैं पूछना है कि मैंने स्किन की प्रॉब्लम चल रही है और मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ और मैंने प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? आप एक बार दोहरा देंगे अपना सवाल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। हाँ जी सर, मैं पानीपत तो बोल रही हूँ, मैंने स्किन की प्रॉब्लम रहती है, तो ठीक है, मैं वैक्सीन लगवा के मैंने ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक वैक्सीन को लेकर भी सवाल है, स्किन प्रॉब्लम है उनको, क्या वैक्सीन की तरफ इनको बढ़ना चाहिए? नहीं, दोबारा पूछिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। सर, उनको स्किन की प्रॉब्लम है,
हाँ हाँ। तो वो वैक्सीन के लिए पूछ रहे हैं कि वो लगवाएं या ना। मेरे ख्याल में तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन स्किन की प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या है, वो उसका माने करेक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। सर एक और सवाल है कि जैसे कोरोना हवा में फैलता है, हवा में कहने का जिस तरह से कोई खांसी करे या एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है, क्या ब्लैक फंगस भी इस तरह से कुछ फैलता है या नहीं? देखिए ऐसा है, नॉर्मली ना ये जो ब्लैक फंगस है, ये जो राइजोपस ग्रुप का फंगस होता है जी, ये नॉर्मली जो डिकेड फूड, ब्रेड वगैरह में या डिकेइंग जो ये है उन सब में होता है। थोड़ा बहुत यदि एक बार वहां उसमें हो गया तो इट्स ए सेप्रोफाइटिक फंगस, ये हवा में भी हो सकता है जी, क्योंकि हवा में भी रहता है। लेकिन जिन लोगों में इसकी टेंडेंसी होती है कि जहां पर जहां पर यदि सिक्रीशंस वगैरह जो हमारा नेजल कैविटी का जो फ्लो होता है, जो हम वहां पर यदि थोड़ा बहुत कहीं भी रुकाव हुआ तो वहां पर ये जाके वहां जम जाता है। दैट इज व्हाट हम लोग सोचते हैं कि ये एक मैकेनिज्म है होने का जी। तो इसी तरह ही ये सेप्रोफाइटिक फंगस है, ये जाके इंसान के उसमें बॉडी में जाके ये पैथोजेनिक हो जाता है। नॉर्मली ये पैथोजेनिक नहीं होता, लेकिन एक बार वहां जाके फिर ये एक डेंजरस प्रोपोर्शन ले लेता है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि चांसेस होते हैं हवा वाले भी, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ सर, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुक्तसर तो गोपाल सिंह जी साडे नाल ने। गोपाल जी स्वागत है, की पूछना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी सर, मैं ना डायबिटीज का मरीज हाँ जी मैं जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ नहीं जी? ठीक है डॉक्टर साहब, ये पूछना चाह रहे हैं वैक्सीन से जुड़ा सवाल है एक और। पिछली बार जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उस समय इनको कोरोना हुआ था, ये डायबिटिक है तो वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? लगवानी तो चाहिए इनको, पहले पिछले बार हुआ था। वैसे तो एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं जी, लेकिन बहुत केसेस देखने में आ रहे हैं जिन लोगों को 2 बार हो रहा है कोविड। एक बार हुआ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए और फिर दोबारा हुआ। सो यदि वैक्सीन लगा दी जाए तो एटलीस्ट कम से कम प्रोटेक्शन होगी, जो ये सेकेंड इन्फेक्शन जो जिन लोगों को होता है वो शायद कम हो जाए चांसेस। सर एक और सवाल है, क्योंकि बहुत सारी इस समय सोशल मीडिया पर यह भी बातें हैं, शायद आप तक भी पहुंची हो, कि ब्लैक फंगस इतना खतरनाक है कि आप अपनी आंखों को भी कवर करके रखिए, हर टाइम आपने शेड्स डाली होनी चाहिए या फिर चश्मा लगाया होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि आंख में घुस गया तो आंख का डेला ही निकालना पड़ गया। इनमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से आंखों को प्रोटेक्ट? ऐसा ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आंखों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है इस इन्फेक्शन से, बेसिकली जो ये फंगस है हमारे जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस ब्लड वेसल्स को ये अटैक करता है जी। तो एक बार नाक में घुसा और नाक में काफी हमारे जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है जी, एक बार ये छोटी छोटी वेसल्स को, कुछ बड़ी बड़ी वेसल्स को एक बार ये इन्वॉल्व कर देता है। तो इसी तरह ही जो वहां की जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज और जो हमारी हड्डियां होती हैं जो फेस में है, वो बिल्कुल नेक्रोसिस हो जाता है, गल जाती हैं जी। एक बार वो उसका नेक्रोसिस होता है तो वही जो इन्फेक्शन है वो आंख, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास में है फेस के, तो आंख का इन्फेक्शन होता है जी। तो इट इज अ कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट, इट इज गॉट नथिंग कि आंख को कवर कर लो तो इन्फेक्शन नहीं होगा। यदि एक बार फेस में एक बार इन्फेक्शन शुरू हो गया है तो हर समय खतरा बना रहता है कि आंख में इन्फेक्शन जा सकता है। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, कोई एज ग्रुप है जहां पर ब्लैक फंगस ज्यादा प्रहार कर रहा हो, कि कोई बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़ों में, युवाओं में? ऐसा है, हमने बच्चों में अभी तक नहीं देखा जी। युवाओं में हम 35 साल की उम्र के बाद हमने मरीज देखे हैं अभी लास्ट करीब महीने में हमने देखे हैं। बुजुर्गों को तो मोस्ट ऑफन उनको डायबिटीज होता ही है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो जो मेजॉरिटी जो एज ग्रुप है वो 50 साल से ऊपर वाले हैं, बट हमने रिलेटिवली यंग पेशेंट्स में भी ये इन्फेक्शन देखा है। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।